हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में, राइट? वर्ड तो सबने सुना है और सबको मीनिंग भी पता है, बट इसके और डेप्थ में जाते हैं, राइट? ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है और हम इसके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं, राइट? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. We hear innumerable kinds of sounds from different sources in daily life. We also produce sounds continually. It is a form of energy that we can hear. We rely on sounds for communication. A crying child makes sound. When a drum is beaten, sound is produced. We can recognize quite a number of sounds without seeing the source. The sounds that we hear tell us a lot about our surroundings. Unexpected noises may warn us of danger. Like us, animals also communicate with other members of their species by making different kinds of sound. It is indeed difficult for us to imagine a world without any sound. Let us study about a sound in detail, right? तो बेसिक हम अपने आसपास कितनी सारी डिफरेंट टाइप्स की साउंड सुनते हैं पूरे से सुबह से शाम तक, राइट? और डिफरेंट टाइप की साउंड होती है. अगर हम ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं तो हमें समझ आता है, राइट? बट वहीं पे जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, राइट? तो क्या होती है, ये बहुत वेराइटी ऑफ साउंड है, डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस होती है और कई बार ये हमें क्या हेल्प भी करती है. किस केस में हेल्प करती है? कई बार हमें डेंजर भी बताती है, राइट? डेंजर भी हमें पता चलता है कि अच्छा ये तेज से आवाज़ आई. सो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक एंड लेट्स रीड मोर इन डिटेल. So, sound is a form of energy that produces the sensation of hearing in our ears. To communicate through sound, we need three factors, right? तो sound क्या एक टाइप की एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट? जैसे हीट है, लाइट है, राइट? वैसे एक साउंड क्या है, एक टाइप का एनर्जी है, राइट? जो हमारे क्या ईयर में सेंसेशन करता है. तो हमें क्या क्या चाहिए कम्युनिकेट अगर हमें साउंड के थ्रू करना है तो कौन कौन से तीन फैक्टर्स हैं? दीज आर फर्स्ट, there should be some source which can produce sound, right? तो कोई source होना चाहिए जहाँ से sound produce हो सके. Second, there should be a medium through which sound waves can travel. For example, air is a medium through which sound can be transmitted, right? अब एक medium भी होना चाहिए, right? जिसमें से sound pass होना हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं? medium, right? transmission के लिए. And the third thing, there should be a sensor, that is ear, which can identify the sound and record the meaning of the sound being produced by the source, right? तो तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? एक सेंसर होना चाहिए जो साउंड जो आ रही है उसको डिकोड कर सके और क्या समझ सके कि वो साउंड है क्या, राइट? क्या बोल रही है, क्या है उसमें, राइट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड. लेट अस टेक ऑन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. फर्स्ट, take a rubber band and attach its one end to a fixed support like a nail or a hook on a table. Hold the other end with the finger. Stretch the rubber band and pluck its middle part with the other hand. Do you hear any sound? Does the rubber band vibrate? You will find that the rubber band on the plucking begins to vibrate and at the same time produces sound. Right? तो आपको क्या करना है? एक नेल लेना है और उससे कैसे एक रबर बैंड ऐसे सीधा अटैच कर देना है, राइट? और आपको इसमें अपने ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या करना है? स्ट्रिंग को स्ट्रिक करना है, स्ट्राइक करना है, राइट? तो ये क्या होगा? वाइब्रेट करने लगेगी, ठीक है? और क्या होगा? प्रोड्यूस करने की पड़ेगी, क्या साउंड प्रोड्यूस करेगी, राइट? सो व्हाट इज द अनदर एग्जांपल? टच द साइलेंट बेल ऑफ योर बाइसिकल. यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन इट. नाउ रिंग द साइकिल बेल and touch it again gently. You will find that the ringing bell, which is producing sound, is vibrating. That is, it is moving back and forth continuously through a very small distance. Now, if you hold the ringing bell tightly with your hand, it stops vibrating and the sound coming from it also stops. It is clear that when the object's bell vibrates, it produces sound, and when the bicycle stops vibrating, the sounds also stop. Right? तो आपने कभी अपनी बाइसिकल की अगर बेल बजाई हो, आपने देखा होगा जैसे आप बेल बजाते हो क्या वो वाइब्रेट करती है, राइट? और अगर उसको ऊपर से पकड़ लो टाइटली तो क्या वो वाइब्रेट करना बंद कर देगी और क्या साउंड भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो क्या वाइब्रेशन भी होगा, बट अगर वाइब्रेशन बंद हो जाए तो क्या साउंड भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज.
In both the above examples, you will notice that an object produces sound when it vibrates. When the object stops vibrating, the sound also stops. Hence, it is concluded that any object that vibrates mechanically produces sound. We may not, however, be able to always detect the vibration. For example, a big and rigid object's detection of vibration becomes difficult, like in a solid iron pillar. Similarly, it may be difficult to detect vibration in a very small objects. This all depends on the amplitude of the vibrating objects, which we'll study later in this chapter, right? तो basically जो कोई भी इससे हमें क्या समझ आया इन दो एग्जाम्पल से कि जो कोई भी साउंड प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, मैकेनिकली वाइब्रेट करता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? तो क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, चाहे वो बड़ी हों चाहे छोटी हों, राइट, सारी वाइब्रेट करती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हम वो वाइब्रेशन हमेशा क्या डिटेक्ट कर ही पाएँ, राइट? कई बार क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं कि हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते, या फिर बहुत बड़े रिजिड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम वाइब्रेशन क्या नहीं डिटेक्ट कर पाते, ओके? हेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, it pushes the air near its surface, thereby producing compression, the region where air becomes dense, and refraction, the region where the air becomes less dense. This step up a wave. When this wave reaches the air, it produces eardrum, which begins to vibrate and thus produces a sensation. Each cycle of sound wave includes one compression and one refraction. Also, the energy required to produce sound wave is provided by some outside source, right? तो जैसे अभी हमने क्या देखा था कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए एक सोर्स इंपॉर्टेंट है, राइट? अब सोर्स क्या करेगा, जैसे वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ की जो एयर है, राइट, वो पुश होती है, तो जहाँ के सरफेस की जो एयर जो पुश होगी, मतलब क्या कंप्रेशन में जाएगी, तो वहाँ पे कंप्रेशन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, राइट? तो इस वहाँ पे क्या ऐसे देखोगे आप कि एक बार कंप्रेशन है, एक बार रिलैक्सेशन है, राइट? तो ये वेव क्रिएट होती है, और ये जो वेव क्रिएट होती है ये कहाँ हमारे ईयर्स तक जाती है, जो आगे क्या वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, ऑल राइट? नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन। और कहाँ कहाँ पे साउंड प्रोडक्शन होता है? द साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एकतारा, सितार, गिटार एंड वायलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स व्हेन स्ट्रक. However, instruments like tabla, dholak and drum contain stretched membranes. The membranes of these instruments vibrate when beaten and produce sound. Instruments like flute and trumpet produce sound by vibrating the air column inside them. Right? और sound कैसे produce होती है? जितने भी आपने instruments देखे होंगे, right? या तो इसमें क्या एक stretched string है जिसको हम क्या करते हैं, struck करते हैं, जैसे गिटार में, या फिर वायलिन में, right? और ढोलक और तबला में क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, तो जैसे ही उसको क्या करते हैं, उसको मारा जाता है, राइट, या उसको क्या बीट किया जाता है एक प्रेशर से, तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्या साउंड प्रोड्यूस होता है. अनदर एग्जांपल इज द बजिंग ऑफ साउंड ऑफ अ बी और अ मस्कीटो इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स, राइट? जैसे क्या बजिंग ऑफ बी या फिर मस्कीटो का हम देखते हैं, तो क्या है वो वाइब्रेशन है उनके विंग्स का. Another thing, the sound of a school bell is produced by the vibration of an iron or a brass plate when it is hit by a hammer, right? तो जो स्कूल बेल होती है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है किसका, आयरन या फिर ब्रास की प्लेट का, जो उसमें जो हैमर होता है वो हिट करते हैं, right? The sound of our voice is produced by the vibration of two vocal cords in our throat caused by the air coming from the lungs. You can feel it by pressing your finger lightly on your throat like little below the chin while speaking, right? तो जो हम sound produce करते हैं वो भी किसकी वजह से है, vibration of the our vocal cords, right? Next thing, the sound in a radio or television is produced by the vibration of the thin diaphragm of a speaker, right? तो जो sound produce हो रही है किसमें, रेडियो या फिर टेलीविजन में, वो भी क्या vibration की वजह से produce हो रही है, right? Again, have you ever heard about Jal Tarang? It is a musical instrument that is rarely used today. It consists of china balls filled with water which are struck by means of two sticks, right? So let's move to the next page. So now let's pull your sleeves up and let's do an experiment.
So arrange the 6 balls on the floor or table in front of you. Fill the bowls with water up to different levels. Increase gradually from one end to the other end. Take the stick and strike the bowls gently from one end to another. You will hear pleasant sounds as you strike each ball. Strike the bowls in different order to create different sounds. Thus, you have made a जल तरंग. So basically आपको क्या करना है, 6 बोल लेनी है जिसमें आपने डिफरेंट अमाउंट का पानी भर लेना है, राइट. और फिर आपको क्या करना है, इसमें स्ट्राइक करना है, मे बी किसी पेन से या पेंसिल से. तो आप क्या देखोगे, जब आप उसके एजेस पे स्ट्राइक करोगे तो वाटर में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, राइट, और फिर साउंड प्रोड्यूस होगी. इसको ही क्या बोलते हैं, जल तरंग. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. तो हम देखते हैं ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है. Humans are the only creatures who can make different kinds of sound. The sound is a human voice is produced by the vibration of vocal cords in the throat. The sound produced while talking or singing comes from the voice box or the larynx, which is situated in the front part of the neck at the upper end of the windpipe. There are 2 vocal cords stretched across the voice box in such a way that they leave a narrow slit in between for air to pass. When the vocal cords are stretched, they become thin, and when they are loose, they become thick. Air from the lungs that is forced through that slit makes the vocal cord vibrate. The vibration of the vocal cords produces sound. So basically humans में क्या होता है, केवल humans ही एक ऐसे टाइप के creatures है जो क्या sound, different टाइप की sounds produce कर सकते हैं. तो humans में किसकी वजह से, vocal cords की वजह से sound production होता है, जो कहाँ पे, हमारे throat area में present है, right. तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो इस तरीके से एक वॉइस बॉक्स से कनेक्टेड होते हैं, राइट, जो स्ट्रेच्ड होते हैं, राइट. वो भी एक स्ट्रेच्ड फॉर्म में वोकल किससे, वॉइस बॉक्स से कनेक्टेड होते हैं. तो जैसे ही हमारा जो विंड पाइप होता है, राइट, हमारे विंड पाइप से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं, राइट. तो जैसे ही जो हम सांस लेते हैं या बोलते हैं, तो जब भी एयर अंदर आती है, बाहर आती है, तो वहाँ पे एक बहुत पतली सी नैरो स्लिट होती है जहाँ से एयर पास होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं क्या वाइब्रेट होते हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या साउंड प्रोड्यूस होती है. तो क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वोकल कॉर्ड्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स एज वेल एज हाउ टाइटली और लूजली दे आर स्ट्रेच्ड. द स्ट्रेचिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इज कंट्रोल्ड बाय द मसल अटैच्ड टू देम. The difference in the voice of men and women is due to the different sizes of their vocal cords. In men, the length of the vocal cord is about 20 mm, while in women it is only about 15 mm. That is why when men have a deeper voice than women, the vocal cords in children are very short, which makes their voice high pitched. Right? तो basically sound जो different types के हम produce कर सकते हैं, किस पे depend कर रहा है, vocal cord के size पे, right? तो क्या होता है, जो vocal cord होता है वो किससे रेगुलेटेड होता है, मसल्स ही हैं बेसिकली, राइट. तो वो स्ट्रेच भी हो सकती हैं, थोड़ी लूज भी हो सकती हैं, राइट. और क्या होता है, कितनी स्ट्रेच्ड है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेच है, कितनी लूज है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कैसे टाइप की वॉइस निकल रही है. जैसे अगर मेन में देखा जाए तो वो जो वोकल कॉर्ड का लेंथ है वो कितना 20 mm होता है, वेयर एज इन फीमेल्स इट इज़ जस्ट 15 mm, जिसकी वजह से देखते हैं मेन और वुमेन का जो वॉइस है उसमें कितना डिफरेंस आता है, राइट. वैसे ही जो बच्चों का वोकल कॉर्ड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो उनका और जो वॉइस है वो कितना हाई पिच्ड होता है, राइट. सो इवन इन द सेम पर्सन द टाइप ऑफ और द क्वालिटी ऑफ द वॉइस प्रोड्यूस चेंजेस, राइट, depending on whether the vocal cords are thin and tightly stretched or thick and loose. The tone of human voice can be controlled at will. Singers are able to produce a wide range of sounds by a precise training and practice. The tongue, cheeks and lips all contribute in the production of different kinds of sounds, right. तो क्या होता है बेसिकली, एक ही पर्सन जो है कितने क्वालिटी की, कितने डाइवर्सिटी की भी साउंड निकाल पाता है, राइट. तो वो क्यों हो रहा है कि वो जो वोकल कॉर्ड है हमारा स्ट्रेच्ड है, राइट, और कितना लेंथ में बड़ा है, राइट. वहीं पे दूसरी और क्या, अगर वो लूज है और क्या थिक है तो अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस करेगा, राइट. सो जो भी हमारा माउथ का पार्ट है, जैसे टंग आ गया, चिक्स आ गया, लिप्स आ गया, राइट, ये सारे किसमें साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स सी द स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मटेरियल्स ऑफ मीडियम, राइट. अब जिस स्पीड से साउंड प्रोड्यूस होती है उसके बाद फिर ट्रैवल करती है, ठीक है, तो वो कौन से मीडियम में किस स्पीड से मूव करती है.
अगर हम ड्राई एयर की बात करें जहाँ पे क्या 0 डिग्री सेल्सियस है, द स्पीड इज 331.5 मीटर पर सेकेंड. इन ड्राई एयर विद टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस 343 meter per second. In hydrogen at 0 degree Celsius 1286 meter per second. In water, distilled water at 20 degree Celsius it is 1498 meter per second, and in sea water at 0 degree Celsius it is 1533 meter per second. Now let's move to the next page. So these are the various speeds of sound in various different types of materials, right? Now let's see the propagation of sound, right? Sound अब propagate कैसे करती है, move कैसे करती है. Sound waves always require a medium to propagate, which may be a gas such as air, a liquid such as water, or solid such as wood or steel. Sound cannot travel in vacuum. It means if a loudspeaker plays music at full volume on the moon, no sound will be heard as there is no air, right? तो हमें क्या sound के जो waves हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, propagate करने के लिए क्या कोई medium चाहिए, जैसे air, liquid या फिर solid, right? कुछ भी medium हो सकता है, but क्या medium ज़रूरी है. तो अगर let's say अगर आप अर्थ से बाहर जाते हो, स्पेस में जाते हो, मून पे जाते हो, तो क्या वहाँ पे कोई भी साउंड हमें नहीं सुनाई देगी अगर आप कितने ही लाउड स्पीकर पे बजाओ. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, राइट? वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर. ठीक है, एयर में कैसे साउंड ट्रैवल करती है. द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर कैन बी कंपेयर्ड टू द एक्सपेंशन ऑफ अ बलून. एज द बलून एक्सपैंड इन all direction, so is the sound that propagates in all direction. As the sound is generated, it causes the layer of air immediately around it to vibrate. The vibrating layer of air transfers the vibration to the next layer of air. Thus, the vibration keeps on moving outward from the source as waves and carry the sound forward. Right? तो क्या होता है, जैसे propagate कैसे करती है sound air में. तो आपने एक कभी बलून को एक बार फूलते हुए देखा होगा, राइट? तो जैसे वो धीरे 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 करके फूलता है, राइट? तो हर डायरेक्शन में होता है. वैसी जो साउंड होती है वो लेट्स से एक सोर्स से मूव करती है, तो क्या हर डायरेक्शन में वो क्या अपने आसपास की जो एयर है उसको वाइब्रेट कर देती है, राइट? ये जो वाइब्रेट करती है उससे क्या होता है, नेक्स्ट जो लेयर है एयर की वो वाइब्रेट होती है, राइट? ऐसे क्या होता है, वाइब्रेशन पास ऑन होती है और ऐसे साउंड ट्रैवल होती है. Now let's get to an information. Since there is no air on moon and outer space, therefore the astronauts who land on moon talk through wireless setting using radio waves. This is because radio waves can travel even through vacuum, right? देखो तो जो मून है, आउटर स्पेस है हमारा, वहाँ पे तो कोई एयर ही नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स कैसे बात करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या वो वायरलेस सेटिंग यूज करते हैं जिसमें से क्या रेडियो वेव्स आती है जो वैक्यूम में भी हम सुन सकते. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू वाटर. तो वाटर में कैसे साउंड ट्रैवल करता है. साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर. इन फैक्ट इट ट्रैवल्स फास्टर थ्रू वाटर दैन थ्रू एयर. मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स यूज साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट अंडर वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट? तो कैसे हम क्या देख रहे हैं कि साउंड जो है वो वाटर में ज़्यादा तेजी से जा पाता है एज कम्पेयर टू व्हाट, एयर. इसी जैसे हमने देखा होगा जो डॉल्फिन्स हो गई, वेल्स हो गई, राइट? वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं इतने बड़े डिस्टेंसेस पे, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक 2 stones or marbles and click them together in air and listen to the sound. Then submerge them in a swimming pool and click them together under the water. Listen to the sound produced underwater. You will observe that the sound heard is clearer and louder when the stones are submerged in water. Thus, it is concluded that the sound can travel inside water. तो आपको क्या करना है, 2 stones लेने, राइट? और उसको एयर में एक बार ऐसे उनको क्लिक करना है, एक दूसरे की तरफ ऐसे क्या बजाना है ताकि साउंड प्रोड्यूस हो सके. ठीक है, और वहीं पे ये कहाँ, पानी के नीचे जाके आपको करना है. तो आप क्या देखोगे कि जो पानी के नीचे आपने साउंड सुनी वो कैसी होगी, एक तो लाउड होगी और क्लियर होगी. इससे हमें क्या समझ आया कि जो
साउंड है वो वाटर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड्स. Sound travel fastest through solids. For example, the speed of sound through steel is almost 20 times the speed of sound through air. That is why the arrival of a train when it is several kilometers away can be known by placing an ear on the rail track. Since sound travels through the steel at a speed of about 6 kilometers per second, the sound of the wheels moving over the rail tracks can reach the person much faster than the train itself. Right? तो साउंड जो है वो सॉलिड्स में कितना और भी तेज मूव करती है, और भी तेज ट्रैवल करती है, राइट? अब देखो, अगर आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, ट्रेन जो है, राइट, ट्रेन आने से पहले अगर आप देखो वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे अगर अपना एयर प्लेस करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन आने वाली है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड होता है वहाँ पे क्या है, स्टील, राइट, उसमें क्या बहुत तेजी से स्पीड ट्रैवल करती है, विच इज़ 6 किलोमीटर्स पर सेकेंड. अब ये ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट. Search out a steel railing either in your home or a school. Place your ear at one place of the railing. Ask your friend to stuck the railing at some distance from you. You will observe that you will able to hear the sound. Now you stuck the railing and ask your friend to hear the sound at a distance. Right? तो आपको क्या करना है, स्कूल में या अपने घरों में रेलिंग्स होती है, राइट? तो आपको उसको क्या करना है, एक जगह से स्टक करना है और दूसरी जगह पे अपने फ्रेंड्स को सुनने के लिए बोलना है. तो आप देखोगे आपको साउंड सुनाई देगी. सो दिस शोज दैट सॉलिड से भी साउंड ट्रैवल होता है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी हियर साउंड, राइट? The organs with which we hear sound are our ears. Our ears are made up of 3 distinct parts: outer ear, middle ear and inner ear. The part of ear which we see outside the head is called outer ear. It consists of a broad funnel like part called pinna and about 2 to 3 centimeters long passage called ear canal. At the end of the ear canal is a thin elastic and circular membrane called eardrum. The eardrum is also called the tympanum. This eardrum separates the outer ear from the middle ear. The middle ear, which lies beyond the eardrum, has 3 delicate interlocked bones called the hammer, anvil and stirrup. The inner ear has coil tube with tiny hair, cochlea, which the real organ of hearing. This coil tube is filled with a special kind of liquid. The sound waves are collected by the pinna of the outer ear. The sound waves pass through the ear canal and fall on the eardrum. The eardrum starts vibrating back and forth rapidly. The vibrating eardrum causes the middle ear bones, ossicles, to move, which amplify the vibration and send them to cochlea in the inner ear. Cochlea transform the vibration into nerve impulses and transmit them to the brain. As a result, we are able to hear sound. Right? तो basically एक जो हमारा ईयर होता है, राइट, उसके 3 सेक्शन में हम इसको पढ़ सकते हैं. मतलब एक आउटर ईयर जो हमें बॉडी के बाहर दिखता है, राइट, ये वाला पार्ट एक होता है, फिर मिडल ईयर एंड द इनर ईयर, राइट. तो जो आउटर पार्ट है, राइट, उसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि आउटर ईयर में क्या आएगा आपका, एक तो पिना आता है, राइट, ये ईयर कैनाल आता है. ईयर और पिना क्या हेल्प करते हैं, आपका साउंड को पहुंचाते हैं ईयर तक, राइट. और यहाँ पे फिर आता है एक ईयर ड्रम, ठीक है, ईयर ड्रम आता है. अब जैसे ही साउंड इसमें आती है तो किस पे स्ट्राइक करती है, ईयर ड्रम पे सबसे पहले स्ट्राइक करती है. ईयर ड्रम क्या वाइब्रेट करता है, देन द साउंड गोज टू द मिडल ईयर. अब मिडल ईयर में 3 क्या होती है, 3 बोल्स होती है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, राइट. ये 3 बोल्स होती है. जैसे ही मिडल ईयर में जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो 3 क्या है, बोन्स हैं, इसकी वजह से वाइब्रेशन होती है, राइट, वाइब्रेशन होती है यहाँ पे मिडल ईयर में. उसके बाद क्या होता है, ये वाइब्रेशन के बाद ये साउंड किस में जाती है, वाइब्रेशंस इनर ईयर में जाती है, राइट, इनर ईयर में जाती है. इनर ईयर में एक चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्लिया, राइट. एक स्पाइरल लाइक थिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्लिया, जिसमें टाइनी हेयर्स भी होते हैं, राइट. अब ये जो कॉइल ट्यूब है ये स्पेशल लिक्विड से क्या फिल्ड होती है. तो जैसे ही साउंड वेव जो हैं
वो आउटर ईयर से इनर ईयर तक, उसके बाद कहाँ आती है, अंदर आती है, राइट, ऑसिकल्स तक आती है। मिडल ईयर में क्या ऑसिकल्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, तो उसकी वजह से जो साउंड होती है वो और एम्पलीफाई हो जाती है और कहाँ तक पहुँचती है, इनर ईयर तक, विच इज़ कॉकलिया। जो कॉकलिया है वो ट्रांसफॉर्म करता है इन वाइब्रेशंस को, किस टाइप में, नर्व इम्पल्स में। नर्व इम्पल्स में क्यों ट्रांसफर करते हैं, ताकि वो ब्रेन तक पहुंचे और वो समझ पाए कि क्या है इस साउंड का मीनिंग, राइट। नाउ लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट. So what you have to do is, let us make a model of a eardrum. Okay, take a tumbler, a rubber band large enough to go around the bowl, a saucepan, a thin plastic sheet, scissors, large wooden spoon, sticky tape and some uncooked rice grain. Now cut a piece from plastic sheet slightly bigger than the open end of the tumbler. Stretch the plastic piece tightly over the tumbler and secure it with rubber band and tape. Make sure that the plastic is fixed tightly and firmly. The stretched plastic sheet resembles the eardrum. Sprinkle some grains of uncooked rice on top of the stretched sheet. Now hold the saucepan near the stretched sheet and strike it with a wooden spoon. You will observe that the rice grains started jumping up and down. This is because when the saucepan is struck with a wooden spoon, a sound is produced. The sound produces travels to the stretched sheet and makes it to vibrate. The vibrating sheet causes the rice grains to move up and down. This is similar to what happens to our eardrum when it receives a sound. Okay, so आपको basically क्या करना है, टम्बलर लेना है, right? और आपको let's say आपने एक ये ग्लास टाइप चीज़ लिया, ठीक है, और इसमें आपको ऊपर क्या, एक प्लास्टिक शीट अटैच कर देनी है और इसको रबड़ से अच्छे से टाइट कर देना है, राइट। आपने प्लास्टिक शीट बिल्कुल टाइट लगा के कर दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके ऊपर क्या ग्रेन्स रखने, किसके, राइस के ग्रेन्स रखने, ठीक है। और उसके साइड में आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना सॉस पैन में भी किसी चीज़ से भी बजाना है, राइट, साउंड प्रोड्यूस करनी है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो ये चीज़ है यहाँ पे जो राइस रखे थे वो उछलने लगेंगे, राइट, वो वाइब्रेट करेगा क्योंकि, राइट। तो इससे हमें क्या समझ आया, जैसे ईयर ड्रम में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट, कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वैसे ही हमने इस मॉडल के थ्रू समझा, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Now let's read about a scientist, Hermann von Helmholtz, right? So he was a prominent German scientist and physician. He is best known for his groundbreaking research on the physics of sound and the philosophy of hearing. His studies on the nature of sound led him to develop the concept, the conservation of energy, which states that energy cannot be created nor destroyed but only transformed from one form to another. Helmholtz applied these principles to explain the mechanism of sound waves and their propagation through different mediums. He proposed the concept of tonal sensation and developed mathematical models to explain the perception of different pitches and tones. His work significantly advanced our understanding of how the human ear process sound waves, right? So basically इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साउंड के फील्ड में काफ़ी अच्छी डिस्कवरी किया था। एक हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। और इन्होंने बताया था कि जो एनर्जी है वो क्या कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, वो क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होती है, राइट। इन्होंने साउंड वेव को उस तरीके से समझा था, ओके। इन्होंने हमें प्रोपोगेशन के बारे में बताया था डिफरेंट मीडियम में, राइट। और हम एक्चुअल कैसे सुनते हैं, हमारे ईयर में कैसे साउंड वेव्स जाते हैं, उसके बारे में इन्होंने क्या हमें सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छे से बताया था। Now let's move to the next topic, which is parameters of vibrations. Right? What are the parameters of vibration? Sound is propagated in the form of wave of vibration, which moves away from the source. A vibration is characterized by parameters such as amplitude, time period, and frequency. Due to vibration, an object executes an oscillatory motion which repeats itself after a fixed interval of time. Let us discuss some of these parameters. So first is amplitude. So the maximum displacement of a vibrating body from its mean position on either side is called the amplitude. It is represented with the letter A. So basically देखो, जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो हमने क्या बोला कि वाइब्रेशन क्रिएट्स होती है, राइट। तो वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है, ठीक है, और जो
एयर में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जो साउंड वेव हमने देखा था, कंप्रेशन, रिलैक्सेशन, दैट मेक्स द साउंड वेव, राइट। तो इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, राइट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, राइट। ये कितना इसने ये ट्रैवल किया एक साउंड वेव ने, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। नाउ कम्स द टाइम पीरियड। The time taken by the vibrating body for one complete vibration is known as its time period. Time period is measured in seconds and denoted by the letter T, right? तो time का क्या मतलब हुआ इधर, time period मतलब कि जो vibrating body को एक complete vibration करने में जितना समय लगा उसको हम क्या बोलते हैं, time period, and denoted with letter T. Next come the frequency, okay? Frequency is the number of vibration made by the vibrating body in 1 second. It is denoted by the letter F. The SI unit of frequency is Hertz or Hz. A vibrating body when makes one vibration in 1 second, then its frequency is said to be 1 Hertz, right? तो frequency मतलब क्या कि जो vibrating body है उसने कितने vibrations एक second में produce करे, उसको हम क्या बोलते हैं, frequency, okay? तो it is represented with F. And F is equal to 1 upon time period, right? In other words, frequency is the inverse of time period. So, let's get to this question. So, based on your understanding, you have to state true and false, right? So, let's move to the next page. So, let's study the characteristics of sound. Sound has three main characteristics. First is loudness. The loudness or volume of a sound depends on the amplitude of vibration which produces the sound. The larger the amplitude, the louder is the sound. In fact, the loudness of sound is proportional to the square of its amplitude. Thus, loudness is directly proportional to amplitude square, right? So basically, sound क्या होती है, loud हो सकती है, right? मतलब हम volume की बात करते हैं, right? तो किस पे depend कर रहा है loudness या फिर उसकी कम होना, एम्पलीट्यूड पे, राइट। जब वो वाइब्रेट करती है तो कितना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हुआ, राइट, ऐसे हुआ या फिर छोटा एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हुआ किसी वेव का, राइट। तो किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे, उसकी लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे। हाउएवर, लाउडनेस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ईयर। अ साउंड वेव स्प्रेड्स आउट आफ्टर इट लीव्स द सोर्स and its amplitude become less and less. Hence, a loud sound may appear faint from a distance. Loudness is measured in decibel, right? तो बेसिकली जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी सोर्स से, तो क्या करती है, उसका एम्पलीट्यूड विद टाइम विद लेंथ, राइट, जैसे वो स्प्रेड होती रहती है, क्या हो जाता है, कम होते रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और फिर क्या, धीरे धीरे, इसीलिए क्या होता है, दूर तक जो कोई भी कितनी भी तेज साउंड हो, एक टाइम बाद तो धीरे सुनाई देती है, राइट। और लाउडनेस को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में, राइट, डेसिमल में। द ग्रेटर द फोर्स एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन, द ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, राइट। तो जितना हम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जितना वो जो जिसमें से साउंड आ रहा है, वो बॉडी जितना साउंड, जितना क्या फोर्स प्रोड्यूस कर रही है वो वाइब्रेशन क्रिएट करने में, उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो रहता है, राइट। Let's understand this concept through a experiment. Place the plastic ruler on the edge of a table. Hold it one side over the table and flick the free end lightly. Observe the vibration and listen to the sound. Again press the free end downwards with more force and release it quickly. Observe the vibration and listen to the sound. You will notice that in the first case the vibration are of small amplitude and sound is soft, while in the second case vibration are of large amplitude and the sound is loud. Hence, loudness of sound is determined by the amplitude of vibrating body, right? तो देखो इसको कैसे समझ सकते हैं आप, एक क्या लोगे, एक स्केल लोगे और उसको एक डेस्क पे रखोगे, आधा डेस्क पे रखोगे और आधे से ज़्यादा उसको एयर में रखोगे, फ्री एंड उसका। जब फ्री एंड उसको ऐसे क्या करोगे, उसको आप लाइटली स्ट्राइक करोगे तो आप क्या देखोगे, वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करता है, राइट। तो उसको क्या समझो, उसको एम्पलीट्यूड समझो, राइट। अगर आप उसको धीरे से स्ट्राइक करते हो तो एम्पलीट्यूड छोटा आएगा, वाइब्रेशन छोटी होगी और साउंड भी क्या, धीरे होगी।
बट उसको तेज से स्ट्राइक करते तो एम्पलीट्यूड भी बड़ा होगा, मतलब वाइब्रेशन बड़ी होगी और क्या, साउंड भी लाउड होगी. ऑलराइट, नाउ लेट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज पिच. Pitch or shrillness of a sound is related to the frequency. High-pitched or shrill sounds, such as those of whistles or a screeching brake, have high frequencies, while low-pitched sounds such as sound of a drum or the roar of a tiger have low frequency. Usually, the voice of a child or a woman has a high frequency and is high-pitched than that of a man. High-pitched sounds are called treble and a low-pitched sound are called bass. ठीक है? तो क्या होता है, पिच मतलब श्रिलनेस, जो साउंड में जो श्रिलनेस होती है, ठीक है, वो उसकी किससे, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है. ठीक है, तो आपने देखा होगा जो भी हाई पिच साउंड होती है, ठीक है, और आपने देखा होगा लो पिच साउंड्स होती हैं. ठीक है, तो कुछ साउंड्स होती है जो दूर तक जाती हैं, कुछ साउंड्स कम दूर तक जाती है. जैसे अगर आप बात करो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स की, राइट, हाई पिच्ड की, जिसमें क्या होता है, जैसे कि वुमेन की साउंड हो गई, राइट, ब्रेक्स की साउंड हो गई या विसल की, ये क्या होती है, हाई पिच, दूर तक जाएंगी. कम दूर तक कौन सी जाती है, मेन की, जो वुमेन की वॉइस होती है, राइट. या फिर जैसे आप देखोगे कि साउंड ऑफ अ ड्रम, ये टाइप की हो गई, जो लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हो गई, राइट. तो जो हाई पिच साउंड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेबल, और जो लो पिच साउंड्स होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस. ठीक है, in the musical octave sa re ga ma pa dha ni sa is the note representing different sounds in the musical scale used in Indian music. Each note is a higher pitch than the one before. All right, so basically देखो, low pitch मतलब कुछ ऐसा और high pitch मतलब कुछ ऐसा, right. ये पैटर्न से अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, right. अब देखो जो भी एक म्यूजिकल ऑक्टेव होता है सारे गामा पाधा नीसा, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं अगले ऑक्टेव पे क्या होता है, जो पिच है वो इंक्रीज होती जा रही है, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो रे इज एट अ हायर पिच देन सा, गा इज एट द हायर पिच देन रे, एंड सो ऑन, राइट. Hence, sound can be identified by its frequency, which gives rise to its pitch and gives it a characteristic tone. However, pitch is different from frequency, as frequency is the number of vibrations produced per second by a source of sound. Pitch is the number of vibrations perceived by a listener. It may be equal to, greater than or less than the frequency, right? Frequency तो हमें पता है कि एक per second में कितनी बार क्या vibration produce की, okay? बट जो पिच होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन परसीव्ड बाय अ लिसनर, कि जो लिसनर है उसने कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन परसीव किया है, ओके. तो जो ये दोनों जो चीज़ें हैं, मतलब पिच और क्या फ्रीक्वेंसी, ये इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या फिर लेस भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड द पिच. Loudness depends upon the amplitude of vibration of the vibrating body, right? And pitch is the frequency perceived by the listener, okay. Loudness depends upon the energy received by the ear and pitch does not depend upon the energy received by the ear, okay, क्योंकि वो listener पे depend कर रहा है. Next, loudness does not change with the change in frequency, okay. frequency के change होने से क्या loudness change नहीं होगा, pitch changes with the change in frequency, okay. Now, let's move to the third characteristic, which is quality. Apart from loudness and pitch, there is another characteristic of sound known as quality or timbre. It is that characteristic of musical sound which enables us to distinguish between two notes of the same pitch and loudness produced by different sources. In other words, quality or timbre expresses our ability to recognize the sound of a violin as different from that of a piano, even when the instruments are playing the same note with equal loudness. Similarly, we can distinguish between the voices of different singers on the basis of the quality of their voices, even without seeing them, right? तो देखो sound का अब क्या है, quality भी होती है, right? Loudness और pitch के अलावा एक और characteristics क्या देखी हमने, quality, जिसको हम क्या बोलते हैं, timbre भी बोलते हैं, ठीक है. ये characteristic sound की क्या बताता है हमें, distinguish करवाता है. लेट्स से अगर हम दो
एक ही नोट पे, राइट, जिसमें हमारा क्या है, सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, फिर भी हम क्या लेट्स से दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बजा रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या डिफरेंशिएट कर पाएंगे, किस बेसिस पे, इस बेसिस पे, टिम्बर के बेसिस पे, उसके क्वालिटी के बेसिस पे, ऑल राइट। यही रीजन है जो हम क्या दो डिफरेंट सिंगर्स को पहचान पाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन, व्हाई द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय even vibrating body cannot be heard by us, right? तो जो भी जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, सारी वाइब्रेटिंग बॉडी से हमें क्यों साउंड नहीं सुनाई दे सकता? सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, राइट? द ह्यूमन ईयर इज एबल टू हियर sound only within a limited range of frequencies, but sounds of frequencies beyond this range are also produced and used in many applications. Human ear can detect sound from 20 Hz to 20,000 Hz. If the frequency of sound falls within this range, it is called audible sound, and if the frequency of a sound is below 20 Hz or about 20,000 Hz, it is said to be inaudible sound, right? तो जो human है वो क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी की साउंड ही सुन सकता है, राइट? जैसे कि अगर हम देखें 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड होती है वो क्या ऑडिबल साउंड्स में आ जाती है, मतलब उनको सुना जा सकता है इतने फ्रिक्वेंसी की साउंड्स को। बट इससे अबव जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड्स। एनी साउंड विद द फ्रिक्वेंसी बिलो दिस ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रा साउंड, राइट? On the other hand, a sound with a frequency above the audible range of hearing that is more than 20,000 Hz is known as ultrasound, right? तो जो ये हमारे पास रेंज है, अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है, कम फ्रीक्वेंसी की साउंड है, तो क्या होगी, इंफ्रा साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड है तो क्या, अल्ट्रा साउंड। ओके, नाउ लेट्स गेट टू एन इन्फॉर्मेशन। Galton whistle is an instrument that produces an ultrasonic range of sound which can only be heard by dogs and cats. So these whistles are used to train dogs and cats. Humans are able to hear only the hissing sound from the whistles, right? तो एक whistle है जिसमें से क्या अल्ट्रासोनिक रेंज साउंड की निकल के आती है, राइट? ये डॉग्स और कैट्स ही सुन पाते हैं और ये बहुत ही क्या उनको ट्रेन करने के लिए यूज़ की जाती है। हम उसमें से क्या बहुत ही एक ऐसी आवाज़ सुनाई देते हैं बस कि अच्छा हम सिर्फ ब्लो कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें एक्चुअल साउंड नहीं सुनाई देती क्योंकि वो बहुत ही धीमी होती है। इंफ्रा साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग पेंडुलम्स, whales, elephants and earthquakes. Elephants frequently use this low frequency sound in a long distance communication. Now let's move to the next page. Often stretching across several kilometers, right? तो ये जो इंफ्रा साउंड्स होते हैं ये क्या वाइब्रेटिंग पेंडुलम्स, वेल्स, एलिफेंट्स हो गए, अर्थक्वेक्स इवन, इन सब में हमें सुनने को मिलती है, बट एक्चुअली हम नहीं सुन पाते, बट इस केसेस में प्रोड्यूस होती है। एलिफेंट्स होते हैं जो वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स यूज़ करते हैं काफ़ी सेवरल किलोमीटर्स में कम्युनिकेट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड many animals like monkeys, deers, cats and leopards can hear the ultrasounds. Dolphins and certain whales can hear sounds up to a frequency of 125 Hz. Apart from this, ultrasounds have many uses in industries. They are used to scan various internal organs in non-invasive manner, right? तो क्या होती है और क्या इसका यूज़ है, जो कौन सी होती है, अल्ट्रासाउंड्स होती हैं जो, ठीक है। अल्ट्रासाउंड्स किसके लिए, एक तो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ में ये किसके लिए यूज़ होती है, मेडिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पे हमें इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स होती हैं, उसको समझने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए भी यूज़ होती है। द ऑडिबल रेंज फ्रिक्वेंसी ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, राइट? So these are the range of the audible frequency of these animals, right? Now, let's get to a question. How do bats catch their prey during night, right? So you have to find this answer. Now let's get to an information. In terms of power, the sound of jet engine is about 1,000,000,000,000 times more powerful than the smallest audible sound, right? तो ये कितना ज़्यादा है, आप देख पा रहे हो कि जो जेट इंजन का जो साउंड होता है वो कितना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ स्मॉलेस्ट ऑडिबल साउंड। नो,
let's move to the and understand some musical instruments. So first is string instruments. These type of instruments consist of taut string of metal wire which are stretched over a wooden sound box. When these strings are made to vibrate, they produce sound. Strings are vibrated by plucking them sitar or striking them guitar. The frequency of the sound is changed by the length or tightness of the string is charged. Right? तो string instruments में क्या होता है? Basically strings होती है, right? जिनको स्ट्रेच प्लग करने से या फिर स्ट्राइक करने से साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट? तो वो स्ट्रिंग जो है वो कितनी टाइट है, राइट? या फिर उसका लेंथ कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट कम्स द विंड इंस्ट्रूमेंट्स. इन विंड इंस्ट्रूमेंट्स द एयर कॉलम इज सेट टू वाइब्रेट बाय ब्लोइंग द एयर थ्रू देम. फॉर एग्जाम्पल फ्लूट एंड ट्रम्पेट. तो बेसिकली विंड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, वहाँ पे एयर कॉलम होते हैं जो वाइब्रेशन सेट करते हैं जैसे ही हम क्या एयर ब्लो करते हैं, ठीक है? जैसे फ्लूट में होता है, ट्रम्पेट में होता है. नेक्स्ट कम द रीड इंस्ट्रूमेंट्स. इन रीड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हारमोनियम एंड माउथ ऑर्गन थिन स्ट्रिप्स ऑफ मेटल्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड रीड्स. ठीक है, तो हारमोनियम हो गए, माउथ ऑर्गन, इनमें क्या होता है, मेटल स्ट्रिप प्रेजेंट होती है. तो जब इसमें से एयर स्ट्राइक करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इन मेटल स्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, रीड्स. Next is the percussion or membrane instrument. In percussion instruments, a vibrating skin or membrane produces a musical sound. When skin is beaten, the sound is produced by its vibration. For example, तबला और ढोलक, right? तो हमने ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं जिसका स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, right? उनको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स. उनके मेम्ब्रेन को अगर हम दबाते हैं, मतलब बीट करते हैं, right? बजाते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है. वैसे ही तबला और ढोलक में जैसे. नेक्स्ट कम दी गाना वाद्य. जल तरंग, मंजीरा, मटका और मड पॉट आर सम इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन यूजिंग वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, राइट? तो इन सब वाद्यों में क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होती है यूजिंग व्हाट, वाटर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट नॉइज एंड म्यूजिक. अभी हम लोग साउंड के बारे में पढ़ रहे थे, बट साउंड से ही कई बार तो हमें क्या म्यूजिक समझ आता है, बट वही साउंड कभी कभार क्या नॉइज बन जाती है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस. सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर while others are not. For example, the sound produced by musical instruments such as flute, sitar, violin, etc. is very good to listen. Such type of pleasant sound is called music. On the other hand, horns, screaming crowd, sound produced by machinery running in a factory or a sound produced at construction sites are responsible for producing sound that is unpleasant and causes disturbance or irritation. Such type of unwanted sound is termed as noise. Musical sounds are distinguished from the noise as they are composed of regular and uniform vibration, while noise constitutes irregular and distorted vibration. Sometimes even loud music appears unpleasant. So देखो, हमारे आसपास हम बहुत सारे साउंड सुनते हैं, राइट? कोई हमें क्या नॉइज लगता है, कोई हमें सुरीला लगता है. जैसे कि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सितार, वायलिन, इतने सारे, उससे हमें हमेशा क्या अच्छा म्यूजिक आता है, राइट? प्लेजेंट साउंड आती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूजिक बोल देते हैं, राइट? वहीं पे दूसरी और जैसे हॉर्न्स बजाने का है ना, ट्रैफिक लाइट पे, इतने सारे जो हमें नॉइज आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, क्या अनप्लेजेंट लगती है, अच्छी नहीं लगती, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो नॉइज. तो इनमें क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, तो जो म्यूजिकल साउंड्स होती हैं, ठीक है, वो उसमें रेगुलर और यूनिफॉर्म वाइब्रेशंस होती हैं. वहीं पे जो नॉइज होती है वहाँ पे इरेगुलर और डिस्टॉर्ट वाइब्रेशंस होती है, जिसकी वजह से क्या वो अनप्लेजेंट साउंड करती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ नॉइज. नॉइज कैसे मेजर की जाती है? द नॉइज इज ऑल्सो मेजर्ड इन डेसिबल, दैट इज dB. द जीरो on a decibel scale is the lowest sound pressure that can be heard. It is called threshold of hearing. 20 dB is the measurement of a whisper. 40 dB is the measurement of noise in a quiet office. 60 dB is the measurement of a normal conversation, and 80 dB is the level at which sound become physically painful. Right? तो ये हमें क्या नॉइज किस में मेजर की जाती है? डेसिबल में, राइट?
0 है अगर डेसिबल हुआ है तो इसका मतलब क्या है, लोवेस्ट साउंड, ठीक है, जितना सुना जा सकता है, बट वो सबसे लोएस्ट है. इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 0 पे. नाउ कम्स द 20 डेसिबल. ये क्या है, विस्पर. जब हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं उसमें क्या होता है, 20 डेसिबल आता है मेजरमेंट में. वहीं पे अगर 40 डेसिबल की बात करें तो नॉइज इन अ क्वाइट ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में जो नॉइज है. 60 डेसिबल में क्या होता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है तो वहाँ पे क्या 60 डेसिबल. देन कम्स द 80 डेसिबल जहाँ पे क्या होता है, जो साउंड होता है फिजिकली पेनफुल हो जाता है, मतलब नॉइज बहुत बन जाता है. नाउ नेक्स्ट कम्स द नॉइज पोल्यूशन. The presence and persistence of excessive or unwanted sound in the atmosphere is called noise pollution. Noise is considered as environmental pollution, even though it is thought to have less damage on humans than water, air or land pollution. High-pitched noises are usually more annoying than the low-pitched ones, which sometimes has harmful effects on human health and well-being. Noise can damage the ears, cause tiredness and loss of concentration, but if it is very loud, it results in sickness and temporary deafness. Sudden increase in loudness causes most damage. Some of the main noise pollutants are aircraft, road traffic, greatly amplified music, firecrackers and many types of machinery including domestic appliances. Okay, तो basically जब हम persistently एक excessive या फिर unwanted sound सुन रहे होते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, तो क्या करता है, नॉइज पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है. अब नॉइज पोल्यूशन भी एक टाइप का एनवायरमेंटल पोल्यूशन है. इवन दो ऐसा माना जाता है कि जो वाटर, एयर और लैंड पोल्यूशन से कहीं कम डैमेज देता है नॉइज पोल्यूशन, बट अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में काफ़ी डैमेज देता है. जो भी हमारे नेचर है आसपास, बर्ड्स हो गई, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स हो गए, जितने भी एनिमल्स है आसपास, राइट, उनको भी ये नॉइज पोल्यूशन क्या इफेक्ट करता है, ठीक है, उनके भी हैबिटेट को, उनके प्रेजेंस को इफेक्ट करता है. तो नेचुरली कहाँ से हम देख रहे हैं नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, फायर क्रैकर से हो रहा है, मशीनरी से हो रहा है, एयरक्राफ्ट से हो रहा है, राइट, इन सब चीज़ों से. नाउ कंट्रोलिंग ऑफ द नॉइज पोल्यूशन. अब कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हियर आर सम वेज बाय विच नॉइज पोल्यूशन कैन बी मिनिमाइज्ड. फर्स्ट इज using sound insulated materials such as carpets and curtains in home. Double glazed windows also help to reduce noise. तो हम क्या घरों में साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कारपेट हो गए, कुछ कर्टेन्स ऐसे होते हैं जो साउंड इंसुलेटिंग होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं. डबल ग्लेज्ड विंडो यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्लांटिंग मोर ट्रीज अलॉन्ग रोड्स एंड इन रेजिडेंशियल एरिया एज ट्रीज आर द नेचुरल बैरियर फॉर नॉइस, राइट. तो हम ट्रीज अगर प्लांट कर दें रेजिडेंशियल या रोड्स के अराउंड तो क्या वो भी एक नेचुरल बैरियर है नॉइस का. ओके, नेक्स्ट, लोकेटिंग noise producing factories and industries units away from the residential area. हम क्या कर सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया से दूर बना सकते हैं फैक्ट्री जिसमें से कॉन्टिन्यूसली बहुत नॉइस आ रहा है. नेक्स्ट, पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्लेइंग लाउड म्यूजिक एट पब्लिक प्लेसेस. तो हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं हाई म्यूजिक पे, ठीक है. अनदर वे, पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेसिव हॉन्किंग बाय ऑटोमोबाइल्स, राइट. बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाने पे हम क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. प्लेइंग रेडियो एंड टेलीविजन एट लो वॉल्यूम, हम रेडियो टेलीविजन कम वॉल्यूम पे भी चला सकते हैं. एंड एयरप्लेन शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लाई एट लोअर एल्टीट्यूड्स ओवर द रेजिडेंशियल एरिया, राइट. तो जो एरोप्लेन्स हैं वो क्या लो एल्टीट्यूड पे नहीं उड़ाने चाहिए ताकि रेजिडेंशियल एरिया में क्या ज़्यादा नॉइस ना आए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. This is exercise for you, so you have to do this. Now let's move to the next topic, that is hearing impairment and solutions. तो अगर ये जो नॉइस की हमने बात की, अगर ये कॉन्टिन्यूसली इंसान सुने तो कई बार क्या हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होता है, राइट. नाउ हियरिंग इम्पेयरमेंट refers to the condition of hearing loss. The degree of hearing impairment can vary widely from person to person. Some people have partial hearing loss while others have complete hearing loss. A kid with hearing loss may attend a special school, special classes within a regular school, or may be a part of a regular classroom, right. तो hearing impairment मतलब क्या कि ऐसी कंडीशन जिसमें hearing loss हो जाए, मतलब आप सुन नहीं पा रहे हो,
राइट, साउंड नहीं सुन पा रहे हो। तो या तो ये हो सकता है कि एक पार्शियल हियरिंग लॉस है जिसमें आपको कुछ साउंड्स आती हैं कुछ नहीं आती है, या फिर क्या होता है कंप्लीट लॉस भी हो जाता है। Some people with hearing loss may need to use special techniques like this to communicate. So, speech reading, which involves looking closely at a person's lips, facial expressions and gestures to help figure out spoken words, right? तो कई लोग जो hearing loss होता है जिनको क्या special techniques use करते हैं communication के लिए, उसमें से एक क्या है speech reading। जब हम बोलते हैं तो हमारे lips move करते हैं, facial expressions होते हैं, gestures होते हैं, उनको ऑब्जर्व करके समझना, राइट। अनदर वे इज अमेरिकन साइन लैंग्वेज और ASL, विच इज अ लैंग्वेज ऑफ हैंड मूवमेंट दैट अलाउज डेफ पीपल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विदाउट स्पीकिंग, राइट। जो डेफ होते हैं तो क्या ASL यूज करते हैं, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, यूजिंग हैंड्स, राइट। नेक्स्ट इज क्यूड स्पीच एंड साइन एक्सैक्ट English, which use hand shapes to translate what is being said. Both the mental to be used with spoken English to help people understand anything they cannot comprehend through lip reading, right? तो अगर हम लिप रीडिंग पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे तो क्या होता है साइंड एक्सैक्ट इंग्लिश, एक क्यूड स्पीच जिसको या फिर क्यूड स्पीच, इसमें क्या होता है हैंड से शेप्स बनाई जाती है कि क्या बोला गया है इंग्लिश में, राइट। Technological devices such as hearing aids have made it possible for such person to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives, right? तो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे डिवाइसेस बना लिए गए हैं, राइट, जिसकी वजह से हियरिंग, जिसको क्या बोलते हैं हियरिंग डिवाइसेस, जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट है उसमें बहुत ही हेल्प मिला है। साथ ही में सोसाइटी जो है साथ में, राइट, अगर हेल्प करे और साथ में उनको जो जिनको हियरिंग लॉस है उनके साथ कॉर्प करे तो क्या हो सकता है, उनकी लाइफ भी नॉर्मल हो सकती है। नाउ लेट्स गो टू द वर्ड फाइंडर्स। साउंड, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। कॉम्प्रेशन, a region where air becomes dense. Refraction, a region where air becomes less dense. Larynx, the organ in the human body which produces sound. Eardrum, the part of the ear which senses the presence of sound. Amplitude, the maximum displacement of vibrating particles from its mean position. Time period, the time taken of a vibrating body to complete one oscillation. Frequency, the number of vibration produced per second. Loudness, intensity of sound. Pitch, the number of vibration per second perceived by a listener. And timbre, characteristics of sound that helps us to distinguish sound which have the same pitch and loudness. Now let's move to the next page. Audible sound, the sound with frequency range of 20 Hz to 20,000 Hz. Inaudible sound, a sound with frequency below 20 Hz or above 20,000 Hz. Infrasound, a sound with the frequency below the audible range of hearing. And ultrasound, a sound with the frequency above the audible range of hearing. Now let's take a look on these few points. Sound is produced by vibrating objects. In human beings, sound is produced by the vibration of the vocal cords. Sound can travel only through a medium, that is gas, liquid or solid, but not through a vacuum. Sound travels faster in solids than in liquid or gases. The eardrum senses the vibration of sound. It sends the signal to the brain, making us to hear the sound. Amplitude, frequency and time period are the important parameters of vibration. The frequency of sound is the number of vibration per second. The higher the frequency, the higher is the pitch of the sound. SI unit of frequency is hertz. Loudness of sound is related to its amplitude. The larger the amplitude, the louder is the sound. The three main characteristics of a sound are loudness, pitch and quality. Loudness of such is expressed in unit called decibel, dB. Pleasant sounds are called music and unpleasant sounds are called noise. Excessive or unwanted sounds leads to the noise pollution. Noise pollution can cause some disorders in human beings. Plantation on the roadside and elsewhere can reduce noise pollution. I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.